करण जौहर द किंग पिन ऑफ नेपोटिज्म। पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं दैट करण इज नॉट दैट बैड, ही इज जेन्युइन इनोसेंट सोल हु जस्ट कांट से नो टू हिज फ्रेंड्स एंड देयर किड्स व्हिच इज व्हाई ही कीप्स हेल्पिंग देम आउट बाय लॉन्चिंग देम ब्ला ब्ला ब्ला। पहले पहले तो आई थॉट कि हो सकता है कि ये सच हो। आई मीन लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, डोंट वी ऑल केयर अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड स्ट्रगल सेइंग नो टू देम? करण के साथ भी ऐसे ही हो सकता है, बट देन ऐसे कमेंट्स कुछ ज्यादा ही हो गए और ऐसा लगने लगा कि ये पेड पीआर का काम है, क्योंकि वो स्टार किड्स को लॉन्च करना बंद तो करेंगे नहीं, तो इनोसेंट केयरिंग अंकल का इमेज मेकओवर ही दे दो, हु इज जस्ट सो जेंटल दैट ही कांट से नो। बट आफ्टर यस्टरडेज वीडियो, करण and innocent, my foot. He straight up hates Shraddha and other outsiders. I know Shraddha is technically a nepo kid, but just watch the video and you will get my point. रिसेंटली करण जौहर और सुपर वुमन लिली सिंह का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एंड दिस केम अप। I mean, and that, when I see a film called Stree, which is going to be the biggest hit of this decade, Stree translates as woman. I mean, and that's now, of course, the men have a lot to do in that film, but like it's led by even women. Like when Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema. And I'll tell you why. She led that film. That character was completely like driven by her performance, and it opened to larger numbers than many leading men who are movie stars. And it opened humongously. And I was like, you know what? This is a big sign for not just her stardom, but also for communication that women can lead a movie. Watch this portion again. Cost 3, which is going to be the biggest hit of this decade. Of course, the men have a lot to do in that film, but like it's led by even women. Like when Alia actually did Gangubai. So he was talking about स्त्री, मगर जैसे ही श्रद्धा का नाम मुंह से निकलने ही वाला था, he realized what he was going to do and immediately held himself back and switched the topic to Alia this, Alia that. हम लोग उर्वशी रौटेला को क्रिटिसाइज कर रहे थे सैफ पे अटैक से सीधा अपने रिंग, वॉच और डाकू महाराज 105 करोड़ पे जंप करने के लिए, और करण यहाँ पे स्त्री से सीधा आलिया पे जंप कर रहे हैं। At the very least, he could have credited Shraddha for her role in the movie. I know that men had a huge part to play in that movie, there is no denying that, but Shraddha does deserve some of the credit for it. I mean, she was literally the Stree in Stree. So he is going to talk about the movie Stree while actually ignoring the Stree in that Stree. I mean, that is some double standard. Like he just wants her to disappear. Now, why am I saying that he hates Shraddha? Because it's one thing to love Alia and give her movies after movies क्योंकि वो अपने पैसे अपनी बेटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। I understand that. But it's entirely another कि किसी और एक्टर का नाम ही नहीं लेना। Almost जैसे कि उस पे सॉफ्ट बॉयकॉट हो। I don't think that Karan wants Shraddha's name to go up in international media. कम से कम अपने थ्रू तो नहीं, तो उसका नाम ही मत लो and hopefully she will disappear one day. Same thing happened with Kangna, and as much as I have criticized Kangna for her questionable and often controversial statements in the media, I actually understand her hatred for Karan Johar and gang. उसने ये बहुत बार बार बोली है कि उसने बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस और उनकी मूवीज को सपोर्ट किया है, लाइक पोस्टिंग अबाउट देयर अमेजिंग मूवी, कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इन रिटर्न नो वन इवन वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट कंगना एंड हर वर्क, एज इफ दे थिंक दैट इफ दे विल कंटिन्यू प्रिटेंडिंग दैट शी डजंट एग्जिस्ट देन शी वुड डिसअपीयर समडे। वहीं आउटसाइडर एक्ट्रेसेस लाइक वामिका गैबी और सनाया मल्होत्रा, वो इमरजेंसी को सपोर्ट करते हुए पोस्ट डाली थी उन्होंने इंस्टा पे, लेकिन किसी भी इंसाइडर ने बात नहीं की थी। आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाई कंगना वेंट बरसर्क ऑन हिज ओन शो। और जहाँ तक मैंने सुना है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, सॉफ्ट बॉयकॉट, एंड ही couldn't even talk about anything, unlike Kangna, until he finally left the world. Now I know that Shraddha has played her cards better than both Kangna and Sushant, and she has actually survived in the industry like Priyanka and Aishwarya did, despite boycott, threats and stuff. And I also remember कि जब जिगरा फ्लॉप हुई थी ना, तब कंगना रनौत ने एक पोस्ट किया था। It was something like this: where you destroy woman-centric films and make sure that they don't work, then they don't work, even when you make them. Read that again.
थैंक्स एंड दैट्स ट्रू। कंगना ने काफी टाइम से वुमेन सेंट्रिक मूवीज बनाई थी, लेकिन उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था बॉलीवुड में, और अब जिगरा जैसी वुमेन सेंट्रिक फिल्म फ्लॉप हो रही हैं खुद से। एंड बाय द वे, आई पर्सनली बिलीव दैट जिगरा वॉज द ट्रू टेस्ट ऑफ आलिया भट्ट्स कैपेबिलिटी टू पुल ऑडियंस इन द थिएटर्स ऑफ हर स्टार पावर, क्योंकि गंगूबाई के साथ संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा हुआ था, विच इज लाइक अ ह्यूज नेम फॉर पीपल आफ्टर रामलीला, पद्मावत एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए देखने गए थे क्योंकि वो आलिया और संजय लीला भंसाली के कोलैबोरेशन से बनी है, बट जिगरा उसमें सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट एंड आलिया भट्ट का ही नाम हो रहा था, एंड द मूवी टैंक्ड वेरी वेरी बैडली। तो उन्होंने जो मेंशन किया था कि स्त्री में मेल कैरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल था टू मेक द मूवी अ हिट, डिड ही मेंशन जब गंगूबाई की वो बात कर रहे थे कि उसमें एक्चुअली में मेल डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल था इस मूवी के हिट होने में, एंड एक्चुअली अनदर फीमेल सेंट्रिक फिल्म लेड बाय आलिया कंप्लीटली टैंक्ड क्योंकि उसमें सिर्फ आलिया ही पॉपुलर थी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही हैज टू पुश डाउन अदर एक्ट्रेसेस टू ब्रिंग हिज ओन डॉटर अप। एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस कि आलिया को आधी हेट सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो करण जौहर से एसोसिएटेड है। और मे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात का मैं बतंगड़ क्यों बना रही हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसे बार बार बॉलीवुड में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को पुश आउट करने के लिए। ये कार्तिक आर्यन के साथ भी इस्तेमाल किया गया था। करण जौहर ने कोशिश की थी कार्तिक का करियर पूरे तरीके से तबाह करने की, और कार्तिक ने उसे रिस्पॉन्ड किया अपना पीआर पर्सनली हाइप अप करके। आप कई बार कार्तिक आर्यन के बारे में ऐसी बातें सुनते होंगे कि दैट ही इज नॉट अ सेल्फ मेड एक्टर, ही इज अ पीआर मेड एक्टर, एंड लाइक देयर इज सम ट्रूथ टू इट दैट ही इज वेरी मच फोकस्ड ऑन हिज पीआर। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि बॉलीवुड और करण माफिया ट्राइड टू एंड हिज करियर, सो ही एम्प्ड अप हिज करियर बाय एम्पिंग अप हिज पीआर। So you are working with Dharma. ओह, इसमें क्या बोलूं? आई थिंक ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। बहुत अच्छे से ये फोटो रिप्रेजेंट करती है। एंड एसएसआर जिसने ऐसा नहीं किया था, वी ऑल नो कि उसके साथ आज क्या हुआ है। But you know, I just wanted to mention this and make a video on this because it was so subtle that I almost missed it until I rewinded the interview and saw it again. So here I am actually making a video about it. And if you are still watching this video and want to watch similar content in the future as well, then please consider subscribing. And I'll see you in the next video. Until then, bye bye.